طول و عرض میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری، جس کے باعث پاکستان کے اکثر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ بہت سے علاقے اس وقت سیلاب کی زد میں اور بڑے پیمانے پر تباہیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ بات کوئی نئی نہیں کہ ہر سال پاکستان میں اس طرح کی بارشیں اور سیلاب کی صورتحال نظر آتی ہے، جس کے باعث مختلف مکانات، باغات، کھیت کھلیان اجڑ جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے عوام بے بسی کی تصویر بنی نظر آتی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں میں اس حوالے سے کافی کام کیا گیا، دعوے کیے گئے، لیکن ہر بار چند منٹوں کی بارش کے بعد صورتحال بے قابو ہو جاتی ہے۔ پاکستان کہنے کو ایک زرعی ملک ہے، لیکن یہاں پہ ڈیمز بنانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی جاتی۔ آخر اس سب کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان میں حکومتیں سالہ سال سے آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، منشور دیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں کہ آخر اس تباہی کو کس طریقے سے روکا جائے۔ کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جاتی کہ بلوچستان، سندھ، سندھ کے علاقوں میں آخر یہ جو بارش کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اس کو کس انداز سے روکا جائے، کیونکہ اس ساری صورتحال کے اوپر حکومتیں بے بس ہیں اور خاموش تماشائی ہیں۔ سب سے پہلے پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کریں، ہمارے ساتھ جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہو رہی ہے، لوگ اپنا تمام تر قیمتی ساز و سامان کھو بیٹھے ہیں، کھیت اجڑ رہے ہیں، آپ کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ہر سال یہ صورتحال نظر آتی ہے، ہر بار ہم آواز اٹھاتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تو بے انتہا اہم شعبہ ہے جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اور پھر جو دنیا بھر میں تباہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات یہ ہے کہ جو ہم سے کانفیڈینشیل رکھی جاتی ہیں چیزیں، اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ مالیاتی ادارے اور جو ہے ممالک کچھ جو بڑی امداد دیتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ کہتے ہیں یہ ابھی امداد لے کے انہوں نے پچھلے جو سیلاب آیا تھا، جو تباہی ہوئی تھی اور جو مکانات بنائے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا کے دیے، وہ اس کا قرض چڑھا ہے پاکستانی قوم پر۔ یہ ان کے پاس اتنا ہونا چاہیے تھا، ان کے خزانے میں اتنا ہونا چاہیے تھا۔ یہ 20 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں اور یہ اپنا کریڈٹ تو بنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ مکانات بنا دیے، یہ ہم نے قرضہ لیا ہے، ہم نے اور موت کا سامان کیا ہے۔ کاش کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے پیسوں سے، ہمارے خزانے سے ہی ہوتا ہے، اور اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہم سے سب سے بڑی کامیابی یہ کر چاہتے ہیں کہ چھپ چھپا کے ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ یہ جو قرض ہم پہ چڑھاتے ہیں اور قرضے کے اگینسٹ میں جو ہے IMF اور مالیاتی ادارے آتے ہیں اور وہ جو ہے ہم کو جو ہے اپنا ایجنڈا دیتے ہیں اور اپنے ایجنڈے سے ہم نے بہت کچھ ہم سے لے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ہم تو ایک چکر میں آئے ہوئے ہیں، ایک گرداب میں آئے ہوئے ہیں، ایک تباہی کا ایک سیلاب ہے جو ہم کو لپٹیٹا ہوا ہے۔ یہ پالیسی ہے۔ ابھی کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کی زد میں ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اقدامات کیے جو نظر آ رہے ہیں؟ کیے تھے نا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، جنیوا میں گئے، انہوں نے باتیں کی، وہاں پہ اربوں روپے کے پلیجز ہوئے، وہ پیسے آج تک آئے نہیں آئے، اس کے بارے میں قوم کو نہیں بتایا۔ یہ سب سے بڑا اقدام ہے ان کا۔ دیکھیں کم آئے ہوں گے، لیکن یہ تو بتائیں کتنے آئے۔ اگر زیرو بھی آئیں تو قوم کو کانفیڈنس ملنا چاہیے، یہ بنیادی حق ہے ہمارا، رائٹ آف انفارمیشن ہے ہمارا کہ ہمیں معلوم ہوگا، کیونکہ ہمارے ٹیکسز جاتے ہیں، ہماری محنت لگتی ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، ہم سے تم چھپاتے ہو۔ لیکن جہاں صاحب ایک سوال ہے، یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہم برسہ بر سے امداد لیتے ہیں، امداد لے کے آدھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بچی کچھ ہی اگر کسی طبقے تک پہنچی تو پہنچی، ہم کیوں نہیں ایک ہی بار ایسا کوئی نظام بنا لیتے کہ یہ بارشیں اس طرح کی تباہی نہ کریں؟ ہم کیوں نہیں اس طرح کا کوئی آبی نظام بنا دیتے، ایک نہری نظام بنا دیتے کہ جو پانی ہے، جو ایک خدا کی قدرت، ایک نعمت ہے، ہم اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس کی تباہ کاریوں سے بچیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج اگر اس پانی کو چینلائز کر لیا جاتا، ڈیمز میں بدل لیا جاتا، تو یہ کتنے ایکڑ رقبے کو زیر آب کر سکتے ہیں، کتنی فصلیں اس سے زیر آب آ جاتی، کتنی پاکستان کی معیشت میں اس کا فائدہ ہوتا۔ یہ تو ہائپوتھیٹیکل سی چیز ہے، یوں ہوتا تو یوں ہوتا تو یوں ہوتا تو یوں ہوا تو نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ اس کی تباہی ہے، اس کی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کیوں نہیں ہے سر؟ یہ حکومتوں کا کام ہے اسٹریٹجی بنانا۔ جہانگیر صاحب یہ کہہ دینا کہ اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ حکومتیں اس سے بری ذمہ ہو جاتی ہیں۔ آپ چلیں ان پہ الزامات لگا دیں، ان کو بتا دیں کہ آپ فیلئر ہیں، فلاپ ہیں،
वो ऐसी स्ट्रेटेजी अपने लिए तो उनके पास होती है इलेक्शन में स्ट्रेटेजी कि वो कामयाब करें और ऐवान भर दें, और ये स्ट्रेटेजी नहीं होती कि हमें, वो एक मिसाल दे रही है मरियम नवाज कि हम 500 रुपए किलो 20 किलो के थैले पे कम कर रहे हैं। आप ये तो देखें कि ये इनका कर्तव्य नहीं है। ये जो इसका एक मुस्बत पहलू भी ये है कि ज्यादा बारिश हुई तो गंदम ज्यादा हुआ, चावल ज्यादा हुआ, और वो कुदरती चीज हुई और उसकी वजह से वो एक्सपोर्ट भी हुई। 2.5 लाख टन जो है चावल जो है एक्सपोर्ट हो सका। और अभी इस मौजूदा हालत में अभी 25 इनको जो अगर 2.5 लाख इनको टन चाहिए थी, अब वो 3 लाख की जरूरत थी, और ये लोग जो है यहीं खड़े हुए हैं। ये सब कुछ लेकिन जावेद साहब, फिर आपने कभी देखा कि सैलाबों के आने से किसी बड़े आदमी का घर बह गया हो? आपने देखा कि कभी किसी वजीर का घर बहा हो? आपने देखा कि कभी किसी ताकतवर जागीरदार का घर इस सैलाब की जद में आया हो? वहां से तो रुख मोड़ दिया जाता है पानी का, और उस आबादी की तरफ धकेल दिया जाता है जहां पे हजारों लाखों की तादाद में लोग बसते हैं, जहां पे गरीब लोग बसते हैं, जहां पे कमजोर लोग बसते हैं। तो पानी का रुख तो उस तरफ मोड़ा जा सकता है। तो जब पानी का रुख उस तरफ मोड़ा जा सकता है, तो पानी का रुख इस तरीके से क्यों नहीं मोड़ा जा सकता कि वो पानी हमारे काम में आए, वो पानी हमारे सिस्टम का हिस्सा बने, हमारी जमीनों को जरखेज करे? ये तो कम हमसे हो ना पाया ना। ये नुआखानी है, हम कर लेते हैं, रोना रो लेते हैं, खून के आंसू बहा लेते हैं, और हम ये बता देते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। आज का हम चीख पुकार कर रहे हैं, आओजारी हमारी 70 साल गुज़श्ता 3 तिहाइयों से ये हुक्मरान हम पे मुसल्लत हैं। आप कह रहे हैं कि नुआखानी कर लें, क्या ये नुआखानी करके हम मुसल्लत हैं? वो उसकी स्ट्रेटेजी आप देखें, उसको समझें कि किस तरह मुसल्लत। पंजाब में कितने अरसे से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है? पंजाब में कितने अरसे से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है? सिंध में कितने अरसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है? केपीके में अब तो पीटीआई के पास भी जवाब नहीं कि केपीके में अब तीसरी बार उनको हुकूमत मिल चुकी, वहां पे तबाहियां हो रही हैं। बलूचिस्तान में कितने अरसे से एक ही वही चेहरे, पार्टियां बदल बदल की हुकूमतों में आ जाते हैं, तो वही चेहरे जो एक बार हुकूमत में आ रहे हैं। हम ये जो ना बड़े अफसोस के साथ हम कर रहे हैं, अंग्रेज जालिम था, जाबिर था, हम उसके गुलाम थे, लेकिन वो भी कोई इस्तिलाती निजाम रखता था कि इनको खुश रखो, इनको खाने पीने को दो, इनको रेलवे लाइन बिछा के दो, इनके जो है वो बंदरगाहें बना के दो। अब बड़े बड़े चीज होटल इसने बनाए, बड़े किले इसने बनाए, बहुत सारी फैसिलिटी की। ये जालिम लोग काले क्या करें जहांगीर साहब? अब हल क्या है? क्या मतलब अब किस नहज पे आ चुके हैं कि हर बार एक बार फिर से मुझे माजरत के साथ मुझे एक चीज नजर आती है, अगर मैं आपकी इजाजत से ये कहना चाहूंगा कि दानिस्ता तौर पे कि कहीं ना कहीं किसी तबके की ख्वाहिश है कि इस तरह की तबाहकारियां हो ताकि भीख मांगी जाए, इन लोगों के नाम पे करोड़ों अरबों डॉलर की इमदादें ली जाए और फिर इसको अपने बैंकों में, अपने स्विस अकाउंट में भरा जाए ताकि इनका फायदा हो सके और एक बार फिर से आवाम को कुछ ना मिले। देखिए, आप हिस्ट्री में जाए, जो गुलाम थे ना, गुलाम थे, वो सारा दिन सारी रात जो है वो बोझ उठाते थे, तकलीफें सहते थे, पेट भर के उसको नहीं मिलता था। हम भी गुलाम हैं, हमारे आका की कुछ किस्में हैं, 2 4 5, वो हम पे, हमारे आका है हमारे, उनके पेट भरते हैं, उनके लिए उनके मकानात बारिश के जद में नहीं आते, सैलाब में नहीं बहते, उनकी अलग दुनिया है, उनकी तालीम भी अलग है, उनकी सेहत के इंतजाम भी अलग है। इस मुल्क से उनका ताल्लुक क्या है? और ये तो खेती बाड़ी के लिए आते हैं कि इसमें से दौलत लो और जो है बाहर कर ले जाओ। इनकी सारी चीजें हैं, इनका स्टेक में लगता क्या है? अगर ये हो जाता है, हल क्या है? मतलब आवाम क्या करे? हमने जमहूरियत को देख लिया, हमने इस बार इलेक्शन में वोट डाल के एक बार फिर से देख लिया, हम लोगों को कायल कर थक गए कि आप निकलें, वोट डालें, जिस सियासी जमात को चाहते हैं वोट डालें, लेकिन किसकी तरफ रुख करें ये बता देना। कि ये तो ऐसा लग रहा है बाय डिजाइन ही सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही कि हो, इससे फायदा है किसी को। इसमें कोई राज है? ये इसमें कोई पुरस्कारियत है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है कि आप जानते नहीं है उनके स्टेक होल्डर्स जो हैं इसके, ये लूट मार के, ये आकाओं की भी एक सोसाइटी है जिसके मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो इस पे इक़्तिदार पर कब्जा करते हैं। हम तो नाम नहीं ले सकते, इशारा नहीं कर सकते उनकी तरफ, वो कहेंगे कैसे ये बदचलन लोग हैं, ये आवाज उठाते हैं। अब हम तो महदूद गुफ्तगू कर रहे हैं,
एक आवाज़जारी कर दें कि आवाज़जारी का कोई नतीजा, कोई इम्पैक्ट पड़े, इसका शायद कोई मतलब तब्दीली आए। ये है ना कि ये गरीब आवाम जो बरसा बरस से पिस रही है वो पिसती रहे। इसका मतलब तो ये है ना कि ये आवाम आवाज ना उठाए। इसका मतलब तो ये है ना कि इनके जो महिलात हैं, जो हमारे नाम नहाद रहनुमा हैं, जो करता धरता हैं, जो जागीरदार हैं, जो वडेर हैं, इनके जो महिलात हैं वो बचे रहें। इसका तो सिर्फ मतलब ये है कि इनको कुछ ना कहा जाए और आवाम पिस रही है तो पिसने दिया जाए। चाहे तकरीबन 2 दिहाइयों की पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत हो गई, कोई कुछ ना कहे, कोई उसने अमल किया नहीं किया, कोई रोड मैप दिया नहीं दिया, कोई मंशूर में जो बातें की, जो दावे किए उसके ऊपर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, इस बार के मंशूर में कुछ कहा जो हुआ नहीं हुआ, पिछली बार के मंशूर में जो कुछ कहा नहीं कहा वो हुआ नहीं हुआ, सब खामोश हो जाए ना। वही हम खामोश हो जाए कि पंजाब में एक बार फिर से नून लीग बरसर इख्तिदार है, उसने पिछली बार क्या किया था, इस बार क्या करेगी। कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली केपीके में नहीं कि पीटीआई ने पिछले 3 बार से जो दावे करती आई, पीटीआई ने कितना डिलीवर किया कितना नहीं किया। क्या आप अपने सियासी लीडरान की बेबसी का पोस्टर दिखा के वोट लेना चाहते हैं? क्या अपने शहीदों का पोस्टर दिखा के वोट देना चाहते हैं? क्या इसमें हुकूमत की, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की इनके पास कोई गुंजाइश नहीं, कोई सकत नहीं किसी सियासी जमात के पास? आप देखें ये लॉर्ड्स हैं, हम उनके अंडर में हैं। कोई लैंड लॉर्ड्स है, कोई वेपन लॉर्ड्स है, कोई जो उसका कारोबार मंशियात का है, हम लोग लॉर्ड्स में हैं। और लॉर्ड्स में इतनी कुव्वत और ताकत होती है कि कुचल देते हैं, स्मैश कर देते हैं आवाज उठाने वालों को। हमें से इज्तिमाई आवाज के हम भी डरे दम के, हमारा मीडिया क्या बोल पाता है? कुछ नाम लेते हुए भी जो झुरझुरी आती है कि क्या बनेगा। बस इसी तरह लगी बंदी बातें करते रहो, शोर मचाते रहो। लोग मरते हैं, उनके जनाजे उठाते रहो, लोग रोते हैं, उनका रोना देखते रहो, घर उजड़ते हैं तो उन घरों को उजड़ते हुए देखते रहो, खामोश रहो, कुछ मत बोलो। बोल के देख लें, आपको शायद तजर्बा नहीं हुआ होगा, बोल के देख ले। नहीं, बोल के देख ले, हमें भी बता दीजिएगा भाई क्या गुजरती है। बोले ना, हिम्मत करें। आप मुझे कहेंगे तो मैं कहूंगा नहीं यार, मैं बोल तो रहा हूँ। मतलब जहांगीर साहब, हम किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? कौन सी जमहूरियत यार? बच्चा जमहूरा। एक तो था जमहूरी कुव्वत अवाम, एक होता बच्चे जमहूरा। इधर आ गया, उलट उधर जा, उधर देख, उधर जा, लेट जा, लेट जा, बैठ जा, बैठ जा, सलाम कर, दो मिला। अरबों रुपए की लागत का इंफ्रास्ट्रक्चर सर, हर साल एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, हर साल बारिश होती है, अरबों रुपए लागत का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जाती माल मवेशी घर बार सब कुछ बह जाता है, वो सब जीरो हो जाता है। जैसे तैसे करके आप कर्ज लेके, इमदाद लेके फिर बनाते हैं, फिर अगले साल ही हो जाता है का घर। सर ये एक मैकेनिज्म क्यों नहीं बना पा रहे? निकाल के और थोड़ा ऊंचा रखे कि आइंदा सैलाब में दोबारा खर्चा ना आए, और वो भी कर्ज की लेके और उसका क्रेडिट लेके, अपने क्रेडिट में क्रेडिट लाइन में वो बता के। सर क्रेडिट ले लें, कोई गिला नहीं, आप क्रेडिट लें, आप तस्वीर लगाना चाहते हैं तस्वीरें लें, लेकिन काम तो ऐसा करके देना। आप तो रेवेन्यू जनरेशन के नतीजे में आती, आपके खजाने में पड़ा होता कुछ, आप अपने अवाम के लिए करते हैं, आपकी उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी, सेहत का इंतजाम है, सब वो अजीब किस्म का हो रहा है। अब क्या करते हैं, ये जो हुकूमतें, नई टेक्निक आ गई है इनके पास, जो ये चंदे देने वाले थे ना, जो अतियात देते हैं, ये एग्जेम्प्टेड भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये एहतियात देते हैं, अभी खाने में देते हैं, उसको कहते हैं कि ये एहतियात से हमने जमा किए हैं, ये हुकूमत की चीज़ है, इसकी एफर्ट्स हैं, उनको क्रेडिट नहीं जा रहा। और ये करके हमारे पैसों से जो एहतियात हमारे लिए दिए जा रहे हैं, अब वो उससे हॉस्पिटल चला रहे हैं, बिल्कुल सही बात, उसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। यकीन तौर पे बतौर एक कौम, बतौर एक मुल्क, हमें इस पर सोचना होगा कि आखिर कब तक यही तस्वीर, साल से यही मनाजिर, यही बेबसी की तस्वीर, यही बेबसी का आलम, यही दिखा के हम पूरी दुनिया को कहेंगे कि हमें इमदाद दी जाए, या हम अपने लोगों से कहेंगे, मुखैर हज़रात से कहेंगे कि इमदाद दी जाए। क्यों ना एक ऐसा रोड मैप दिया जाए जिसमें एक बार एक ऐसा काम कर लिया जाए कि हर बार इस तरह का मंजर ना देखना पड़े। क्योंकि गरीब आदमी जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बना के लगा के अपना घर बनाता है,
बारिशों में बह जाता है, फिर जैसे तैसे अपनी कमर सीधी करता है, खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा होता है, फिर उसके पैरों के नीचे से पानी गुजार दिया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक बाद लौटेंगे तो दीगर कुछ खबरें उनको बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का